Hello dear students, welcome to our today's class. I hope you all have watched yesterday's videos or last class videos in which we have uploaded some objectives of your chapter number 8 and chapter number 9. Okay students, do watch that first and after that come to your this tutorial, this revision video. Okay, so in this video we are going to see brief questions of your chapter number 8 metallurgy. Okay, so before moving to our actual question answer wala part, let me tell you one thing, that students, from these chapters all the diagrams are very important. Okay, for example, here you can see in your page number 100 ऑफ टेक्स्ट बुक, वहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स के डिफरेंट मेथड्स है. ओके, विल्फ्लेटेबल मेथड, तो उसका डायग्राम दिया है वहाँ पे. आफ्टर दैट फ्लोटेशन मेथड का उसका डायग्राम है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड का डायग्राम, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का डायग्राम. ओके, सो दिस ऑल डायग्राम्स दे आर very important. Okay, so practice that diagram. Okay, it will definitely ask for your exam, or else it can be asked for the separate question like draw the diagram, or else it can be asked with explanation kind of thing. For example, explain Wilfley-Table method with diagram, तो वहाँ पे तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा. सो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू दैट प्रैक्टिस दिस डायग्राम्स वेरी केयरफुली. ठीक है. Okay, so now we are going to see our question answer wala part. Okay, so here in the very first question we'll see the different kinds of scientific reasons wala question. Okay, so question number 1, give scientific reasons, 2 marks each. Okay, so first question, sodium is always kept in kerosene. Okay, sodium को kerosene में क्यों रखते हैं? So here you can see its answer. Sodium reacts with moisture present in air even at room temperature to form sodium hydroxide gas. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड गैस जो है वो फॉर्म होती है. सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. सो स्टूडेंट्स टेल मी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? ओके, थिंक एंड आंसर. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. वेरी गुड, द हीट गेट्स रिलीज्ड. ओके, हीट जो है वो बाहर निकल जाती है. सो देयरफॉर द रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस रेडियली कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर. तो वो क्या कर सकती है, सडनली क्या कर सकती है, फायर को कैच कर सकती है. सो दैट्स वाई टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन. ठीक है. Okay, now the second question. Generally, the ionic compounds have high melting points. Okay, ionic compounds are composed of cations and anions. Yes, you all know that. Yes, these ions are held together by which force of attraction? Electrostatic force of attraction. Okay, so considerable amount of energy is required to break these strong forces of attraction. So उसमें क्या होता है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमें लगती है टू ब्रेक वॉट द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कटायंस एंड अनायंस. ओके, सो दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आयोनिक कंपाउंड का क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ द थर्ड इज पाइन ऑयल इज यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ फ्लोटेशन क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन का एक मेथड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ओके, सो फ्रोथ फ्लोटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. तो उसमें क्या यूज़ करते हैं? पाइन ऑयल. क्यों यूज़ करते हैं? लेट्स सी. ओके, सो पाइन ऑयल इज़ हाइड्रोफोबिक. The particles of the metal sulfide ores which are hydrophobic gets weighted by pine oil. Okay, they float with the foam on the surface of water. Thus, by using this property, some ores which contain hydrophobic particles, it can be concentrated by froth flotation process. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, पाइन ऑयल यूज्ड होता है बिकॉज पाइन ऑयल इज़ हाइड्रोफोबिक. ओके,
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्लेस करता है इन व्हाट, इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. ओके, सो दैट्स वाई पाइन ऑयल इज़ यूज्ड इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. ठीक है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. लेमन और टैमेरिंड इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल्स टर्न ग्रीनिश. तो जो कॉपर वेसल्स होते हैं जो ग्रीनिश कलर में टर्न होते हैं आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, ईयर्स एंड ऑल, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? लेमन और टैमेरिंड. क्यों यूज़ करते हैं? लेट्स सी. ओके, so the green color on copper vessel is due to the formation of copper carbonate on it. तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है? कॉपर कार्बोनेट. ठीक है. कॉपर कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड्स प्रेजेंट इन लेमन एंड टैमेरिन. तो सबको पता है लेमन में क्या रहता है? टार्टरिक एसिड रहता है, जो हमें किस में यूज़ होता है? टू रिमूव वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस एंड वायरसेस. तो क्या यूज़ होता है? लेमन हैविंग अ वेरी नाइस क्वालिटी ऑफ एसिड. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट दिस कॉपर कार्बोनेट लेयर गेट्स रिमूव्ड. Hence, lemon or tamarind is used for cleaning copper vessels turn greenish. ठीक है. Okay. Now, fifth question. Anodes need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina. Okay. तो electrolysis of alumina जब करते हैं तब एनोड जो होता है उसको टाइम टू टाइम रिप्लेस्ड करना पड़ता है. क्यों? Let's see. During the electrolysis of alumina, oxygen gas is liberated at anode. एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है? ऑक्सीजन गैस. ओके, सो ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद द ग्राफाइट एनोड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. दस द मास ऑफ ग्राफाइट रॉड्स डिक्रीजेस ओवर द टाइम. और उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसका मास जो है वो इंक्रीज होने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Anode need to be replaced from time to time during the electrolysis of alumina. Okay. Yes. Now answer the following. The electronic configuration of metal A is 281 and metal B is 282. Which of the above metal is more reactive? ओके, तो पहला वाला जो मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 281. तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 एंड दैट इज़ सोडियम. सेकेंड वाला कौन सा है? मैग्नीशियम एंड इट्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12. ओके, तो मेटल ए जो है वो मोर रिएक्टिव है बिकॉज इट हैज़ टू लूज ओनली वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. ओके, और ये जो मैग्नीशियम है उसको कितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को. दैट्स वाई इट इज़ लेस रिएक्टिव दैन सोडियम. ओके, सो मेटल ए इज़ मोर रिएक्टिव दैन मेटल बी. ठीक है. Now classify the following metals based on their reactivity. As I have told you, yes students, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज़. पेज नंबर 97 पे रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स दिया है. वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स दिए हैं और उसका रिएक्टिविटी दिया है. तो वो चार्ट जो है, वो जो डायग्राम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चन, सो मैनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट चार्ट. ओके, और दैट डायग्राम. सो लेट्स सी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. यहाँ पे देखो ये हमें क्या दिया है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स आर गिवन. ओके, फ्रॉम दैट वी हैव टू चूज़ मोर रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल. तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन से हैं? लिथियम, कैल्शियम एंड सोडियम. मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन. एंड लेस रिएक्टिव मेटल है कॉपर एंड मर्क्यूरी. ओके, एंड ध्यान में रखना है गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है. ओके, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. क्रायोलाइट Na3Al(F6), फ्लोरोस्पर CaF2, कॉपर पायराइड CuFeS2, स्टैनिक ऑक्साइड SnO2, फेरस टंगस्टेन FeWO4.
So this type of question will ask for match the following or else MCQ. Okay, what is an alloy? Write its example. Alloy मतलब क्या होता है? It is a homogeneous mixture which is formed by mixing a metal with other metal or a non-metal in a certain proportion. तो इसमें ये कैसे फॉर्म होता है? अलॉय. अलॉय फॉर्म होता है मिक्सिंग ऑफ मेटल. एक मेटल होता है उसको दूसरे मेटल के साथ और किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ मिक्स करते हैं इन अ सर्टन काइंड ऑफ प्रपोर्शन. तो यहाँ पे ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. तो कॉपर एंड टिन मिलके क्या फॉर्म होता है? ब्रॉन्ज. ओके, नाउ हियर वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. यहाँ पे देखो कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग का डिफरेंस बिटवीन दिया है. ओके, कैल्सिनेशन दिस मेथड इज़ जनरली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स और रोस्टिंग मेथड जो है वो सल्फाइड ओर के लिए यूज्ड होता है. ओके, कैल्सिनेशन मेथड में ओर्स आर हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर एंड रोस्टिंग में ओर्स आर हीटेड इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर. ओके, इन कैल्सिनेशन जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व एंड रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व. ओके, सो कैल्सिनेशन में क्या होता है? कार्बोनेट ओर डिकम्पोज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड यहाँ पे सल्फाइड ओर आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. बेसिकली कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर्स यूज़ होते हैं एंड रोस्टिंग में क्या यूज़ होता है? सल्फाइड ओर्स. ठीक है. ओके, नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंस बिटवीन आई हैव रिटन ओवर हियर. रीड दिस, इट इज़ वेरी इजी. नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद द बैलेंस इक्वेशन. यहाँ पे देखो क्लोरीन डिसॉल्व इन वाटर. क्लोरीन है जो वाटर के साथ डिसॉल्व होता है टू फॉर्म HCl एंड HOCl. नेक्स्ट एल्यूमिनियम केम इन कॉन्टैक्ट विद एयर. तो 4Al + 3O2 गिव्स 2Al2O3. ओके, थर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना इज डन. तो यहाँ पे दो रिएक्शन दिए हैं, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन. Here you can see. Okay, and the fourth is zinc oxide is dissolved in dilute hydrochloric acid. That is ZnO plus 2HCl will give ZnCl2 plus H2O. Now students, here methods for preparation methods for the concentration of ores are given. Okay, ये जो है ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन में आ सकता है. फॉर एग्जांपल लाइक दिस फ्लो चार्ट यू हैव टू फिल द फ्लो चार्ट. ये दो आपको मेथड्स दिए होंगे, बाकी ये आपको लिखना है लाइक दैट. फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी इट विल बी आस्क्ड फॉर दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो लाइक दिस. मेथड्स फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर ऐसे सबसे पहले लिखा रहेगा यहाँ पे लाइक दिस, और आपको वो फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है. तो वैसे भी आ सकता है और ऐसे वन सेंटेंस में भी आ सकता है कि राइट डाउन द मेथड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स. ओके, सो व्हाट यू हैव टू राइट? विल्फ्ले टेबल मेथड, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स. देन हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स. फिर आफ्टर दैट मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, इट इज़ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. ओके, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, इट इज़ बेस्ड ऑन हाइड्रोफिलिक and hydrophobic properties, and leaching, it is based on chemical reaction. Same like this prevention of corrosion. तो कैसे हम corrosion का प्रिवेंशन करते हैं, उसके लिए कौन से मेथड है? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसनिंग, galvanizing, tining, anodizing, electroplating, alloying. These are the different methods for prevention of corrosion. ठीक है. Okay, now answer the following 3 marks question. Observe the following diagram and identify the type of reaction and write its observation. Okay, तो यहाँ पे हमें observation लिखना है. क्या observation हमें यहाँ पे मिलेगा? That is the blue color solution will turn to green in a test tube A. Okay, and copper coating will form on the iron nil. टेस्ट ट्यूब B में कौन सा भी रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज टेस्ट ट्यूब B में क्या होता है? आयन होता है. एंड आयन इज हियर यू कैन सी क्या होता है टेस्ट ट्यूब B में? कॉपर है
ओके, तो कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है देन आयन। ओके, आयन इज़ अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयन किस में है? टेस्ट ट्यूब ए में है, तो टेस्ट ट्यूब ए में रिएक्शन होगा एंड टेस्ट ट्यूब बी में रिएक्शन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है एंड हियर यू कैन सी स्टूडेंट्स दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस ओवर हियर। Now here the next question, observe the following diagram and give answer. Okay, first name the method of prevention of corrosion. तो ये कौन सा मेथड है? एनोडाइजिंग। ओके, फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच मेटल दिस मेथड इज यूज्ड? प्रिवेंशन ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल, this method is used. And what is used as a anode in this method? Copper and aluminum articles, they are used as anode in this method. ओके, अभी यहाँ पे भी हमको उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। नेम द मेथड। ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड है यहाँ पे। एक्सप्लेन द मेथड। इन दिस मेथड लेस रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन अ मोर रिएक्टिव मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। ओके, and give two example. Silver plated spoon, gold plated ornaments are the examples of electroplating method. Okay, now the next question, here you can see name the method. ये कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना और एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यू कैन राइट एनी वन फ्रॉम दिस। और यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एनोड रिएक्शन एंड कैथोड रिएक्शन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पे रिडक्शन होता है। एंड वाई फ्लूरोस्पर एंड क्रायोलाइट आर एडेड इन दिस मिक्सचर टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, so like this also question will ask. Now the question based on reactivity series. Here you can see write the names of two metals which react with water. तो ये जो मेटल है वो रिएक्ट करते हैं वाटर से। I have written sodium and lithium. You can also write potassium and calcium. Write the name of two moderately reactive metal. Moderately reactive metal ये हैं। I have written zinc and iron from this. Now highly reactive metal कौन से हैं? ये वाले हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। ओके, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एंड कैल्शियम। एंड लेस रिएक्टिव मेटल सबसे नीचे वाले कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। ओके, सो हियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन आई हैव टेकन दिस पिक्चर फ्रॉम टेक्स्ट बुक विल्फ्ले टेबल मेथड। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस अगेन बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी this in your tutorial video. Okay, you just read this and remember the diagram. You will understand the content very well. Okay, I know already you have studied this. Okay, so this is very easy. Wilfley table method, it will come for like write an explanation with a diagram, explain Wilfley table method, ऐसे भी question आ सकता है। Okay, now 5 marks question. Explain Bayer's process of concentration of bauxite with chemical equation. Okay, so students, I have written I have given picture of answer here. Bauxite is the main ore of aluminium with silica, ferric oxide and titanium oxide as impurities in it. Okay, so ये process में क्या होता है? Bauxite ore is first crushed and then it is leached by heating with hot concentrated caustic soda solution. Okay, with a high pressure and 2 to 8 hours. और कौन सा टेम्परेचर कितना लगता है? 140 to 150 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज़ डिसॉल्व इन एक्वस NaOH, ओके, टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे ये फॉर्म होता है। ओके, after that here you will see the reaction what we will get over here, that is aluminum oxide, okay, which is called as alumina. Okay, yes, now again the different kinds of methods, that is magnetic separation method. Okay, diagram दिया है, उसका explanation दिया है, very important. Froth flotation method, same diagram देके उसका explanation दिया है। Students, remember one thing,
यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द डायग्राम. आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन जो है वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, बट पॉइंट वाइज लिखना है, अच्छे से लिखना है. ओके, नाउ हियर one paragraph is given over here and you have to give its answer. What are metals? What are metals, students? Metal exist in solid state. They have properties like ductility, malleability, luster. Okay, what is metallurgy? Metallurgy, the science and technology regarding the extraction of metal from ores and their purification, is called as what? Metallurgy. Okay, which metals are found in free state? Here you can see silver, gold, platinum, they are found in free state. ओके, एंड व्हाट इज सॉइल इम्प्यूरिटी? सॉइल इम्प्यूरिटी मतलब क्या रहता है? सॉइल में जो वेस्ट रहता है, सैंड, रॉकी सब्सटेंस, पोल्यूटेंट्स. ओके, बेसिकली सॉइल में क्या रहता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी. ओके, yes, so this is about your this brief questions. Go through the video and write the answers in your notebook. Thank you.